ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ہاشم ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا بزنس مین تھے۔ گھر میں اماں اور ابا ہی رہتے تھے۔ ہم جس جگہ رہتے تھے وہ محلہ کافی سادہ تھا۔ محلے کے تمام بچے صبح سویرے سپارہ پڑھنے مسجد جایا کرتے۔ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے تھے جہاں بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے چاہتے تھے۔ ابا نے بھی بچپن سے ہی مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی، جس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ عورت کے حقوق اور نقاب پردے سے لے کر مرد کے فرائض تک میں سب جانتا تھا۔ حرام حلال میں فرق مجھے بہت اچھے سے بتایا گیا۔ اس سب میں میری اماں نے میری بہت مدد کی تھی۔ میری اماں میری پرورش کے معاملے میں بہت سخت تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ جب برا وقت آتا ہے تو تربیت یافتہ بھی رل جاتے ہیں۔ اسکول گیا تو کبھی دوسرے بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کی تھیں، نہ ہی کبھی باقی بچوں کی طرح لڑائی جھگڑے کیے تھے۔ میں بہت شرمیلا بچہ تھا۔ ابا اور اماں کی محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ پورے محلے میں لوگ میری تمیز اور میرے اچھے اخلاق کی داد دیتے تھے۔ ابا جنہوں نے اپنی آدھی زندگی میری تربیت پر گزار دی اور باقی کی زندگی اپنے کام کاروبار کو میرے حوالے کرنے میں۔ مجھے انجینئر بننے کا شوق تھا اور ابا چاہتے تھے کہ میں بزنس کی ڈگری حاصل کر کے ان کا بزنس سنبھالوں۔ میں نے ابا کا شوق پورا کیا اور بزنس کی ڈگری حاصل کی اور ابا کا بزنس سنبھالا۔ میں جس وقت یونیورسٹی جاتا وہاں لڑکیاں اپنی نمائش کرتی بہت دھڑلے سے پھرا کرتی تھیں، لیکن اس سب کا میری ذات پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں مضبوط مرد تھا، دل پھینک مردوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پورے محلے میں بہت نیک شریف مانا جاتا تھا۔ میں اپنے کام پر جاتا تو نظریں نیچے کر کے جاتا۔ ہمارے محلے کی تمام عورتیں بہت خوش تھیں مجھ سے۔ بہت مشکل پیش آتی تھی خود کی نظروں کو سنبھالنے میں۔ صبح نماز کے بعد میں ورزش کرنے نکل جاتا اور جب گھر واپس آتا تو سورج کی کرنیں ہر جگہ پھیلی ہوتی۔ آتے ہی ناشتہ کرتا اور اپنے کام پر نکل جاتا۔ ایک روز مجھے حیرانگی ہوئی جب میرے نکلتے ہی ہمارے ہمسائے کی بیٹی بھی باہر نکلے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ میرے ضمیر نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ میں ٹکٹکی باندھ کے اس لڑکی کی طرف دیکھوں۔ میں خاموشی سے اپنے کام پر نکل گیا اور وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ حیرت اس بات کی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ آج ہو رہا تھا۔ اپنے کام پر بھی مجھے سارا دن اسی لڑکی کی یاد آتی رہی۔ میں پاگلوں کی طرح بار بار اس کے بارے میں سوچی جا رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تبھی میرا دوست مجھ سے ملنے آیا جو مجھ سے بالکل الگ تھا۔ لڑکیوں کی باتوں میں دلچسپی رکھنا اور لڑکیوں کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اتنے سال اس کے ساتھ رہنے کے باوجود کبھی میری ذات پر سب کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا، لیکن آج اس لڑکی کے نقاب نے نہ جانے میرے دل میں کیا ہلچل مچا دی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ ہوش تو تب آیا جب دوست نے میرا بازو ہلا کر مجھے پکارا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ اگر میرا دوست پہچان سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اس کے باوجود اس نے بہت سنجیدگی سے یہ سوال کیا تھا، تو باقی لوگ بھی میری چوری پکڑ سکتے ہیں۔ میرا جسم اپنے دوست کی بات پر کانپنے لگا تو میں سر ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرا دوست جو میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا ایک دم پریشان ہو گیا۔ اگلے کئی روز جب میں گھر سے نکلتا تو ایک نظر اپنے پڑوسن کے گھر کی طرف لازمی دیکھتا۔ اب تو میں اپنی ان حرکات سے تنگ آنے لگا تھا، لیکن کئی بار دل میں ہلچل مچی تو میں پریشان ہونے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کس کو اپنی کیفیت بتاؤں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری ہر نماز قضا ہونے لگی۔ پہلے جو میں نظریں جھکا کر چلتا تھا، اب ایک لڑکی کے پیچھے مجھے ہر دوسری لڑکی کی طرف ایک لڑکی کی تلاش میں دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ لڑکی مجھ پر اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ ہر نقاب کرتی لڑکی میں مجھے اس کی جھلک نظر آتی تھی۔ میں خود سے بہت تنگ آ گیا تھا، ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اب تو گھر والے بھی میری پریشانی بھانپنے لگے تھے۔ ایک روز ابا نے ناشتے کی میز پر بیٹھے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ جھماکے سے اس لڑکی کا نقاب میری نظروں کے آگے لہرا گیا۔ میں پریشان کن حالت میں ناشتہ چھوڑے اپنے کمرے میں چلا گیا اور ابا سے کہہ دیا آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ سب میری اس حرکت پر بہت حیران تھے۔ میں نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا، لیکن میں کسی کے بھی سامنے خود کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کئی دن اور راتیں ایسے ہی گزر گئیں۔ اب تو میری رسائی چھت تک بھی ہو گئی تھی کہ شاید وہ لڑکی اور اس کا چہرہ مجھے کہیں نظر آ جائے۔ میں جو کبھی کسی حرام چیز کے پاس تک نہیں گیا تھا، ایک نقاب میں مجھے ہر حرام چیز سے ملوا دیا تھا۔ میں نے سگریٹ پینا شروع کر دیا، لیکن میں اس وقت پیتا تھا جس وقت گھر کے باقی افراد سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور میری حالت بد سے بدترین ہوتی گئی۔ وہ لڑکی نشے کی طرح میرے سر پر سوار ہو رہی تھی۔
मुझे इस बात का इल्म तक ना हुआ कि कैसे कब मैं इसका इतना आदी हो गया हूँ। न चाहते हुए भी मैं सब करता जा रहा हूँ, जिस चीज़ की तरफ मैं कभी मुड़कर देखता भी नहीं था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाखों लड़कियाँ थीं, लेकिन आज तक इन पर मैंने एक नज़रें गलत नहीं डाली थी। हमारे पड़ोसी अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, लेकिन इनकी कितनी बेटियां हैं आज तक कोई नहीं जान सका था। कुछ दिन मज़ीद गुजरे तो मैं फिर अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला ही था कि पड़ोसन के घर का दरवाज़ा भी किसी ने खोला। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो इस बार इस नकाबपोश हसीना ने भी मेरी तरफ एक नज़र डाली, और इस वक्त मुझे लगा कि मेरे वजूद से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मेरी रूह परवास कर चुकी थी। वो एक नज़रें गलत डाल कर चली गई, लेकिन अब की बार मैं इसके नकाब के साथ साथ उसकी आंखों का भी दीवाना हो गया था। अब्बा की तरबियत और मेहनत तो जैसे एक मिनट में मनोमटी जा सोए थे। दिल में जैसे खुशी की फुहार फूट पड़ी थी, जैसे मरने वाले को जन्नत की नवीद सुना दे गई हो, जैसे फांसी पर चढ़ने वाले की आखिरी ख्वाहिश को उसको माफ़ कर दिया जाए पूरी हो गई हो, जैसे एक नशई को उसका नशा मिल गया हो। मेरे दिमाग को एकदम सुकून महसूस हुआ था। वो लड़की मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं थी। इसकी आंखें बला की खूबसूरत थीं। सारा दिन खुशी से गुजरा था, अब तो जैसे जीने की वजह मिल गई थी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये नशा मुझे जल्दी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसी वक्त घर से निकला करूंगा जिस वक्त मेरी पड़ोसन की बेटी निकला करेगी। मैं ऐसी दलदल में गिर रहा था जहां से वापसी नामुमकिन थी। सब जानते हुए भी इस दलदल में गिरना चाहता था, जैसे मेरे दिल को सुकून मिलता था, मेरा दिमाग सुकून में आ जाता था। एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। इस लड़की को याद करके अब मैं रोज़ इसी वक्त निकलता जिस वक्त वो लड़की निकलती थी। मुझे शरीर हैरानी का झटका लगा, क्योंकि पड़ोसन की जवान बेटी जो हर रोज़ नकाब करके बाहर निकलती वो बहुत खूबसूरत थी। इसकी आंखें नीली थीं और मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो रोज़ बाहर निकलती है। मेरे मुताबिक तो वो कभी बाहर नहीं निकली थी। हैरानगी की बात यह थी कि मेरे अलावा भी किसी ने कभी उसे बाहर निकलते नहीं देखा था, क्योंकि अक्सर बाकी मोहल्ले वाले मेरी पड़ोसन की बेटियों की बात करते तो इनकी इज्जत और उनके अच्छेपन के कसीदे पढ़ते थे। एक दिन तजस्सुस के मारे मैंने उसका पीछा करने का सोचा। मैंने इसका पीछा किया। वो खामोशी से चलती जा रही थी, मैं भी इसके पीछे चलता गया। वो सुनसान सड़कों पर चलने लगी, लेकिन मैं हैरान रह गया क्योंकि वो सड़क पर बैठी भीख मांगने लगी। इसे देखते ही मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरा सर एक मिनट में घूम गया था कि इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़की भीख मांगती है, और इसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो इस लड़की को मांगना पड़ा। मैं इसके पास गया तो वो मुझे देखते ही एकदम घबरा गई। मैं इससे बहुत से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन ऐसे सबके सामने मैं कुछ नहीं पूछ सकता था। मैंने वो संगीन गुनाह किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुस्से में आकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया। वो मेरे साथ कटी पतंग की तरह चलती रही और आंसू बहाती रही। एक जगह लाकर मैंने उसे खड़ा किया तो मुझे देखते ही बोली, प्लीज़ ये बात मोहल्ले में किसी को न बताना, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। देखने में कहीं से नहीं लगता था कि वो ज़रूरतमंद घराने से है, ना ही कभी उसके घर से किसी की ऐसी हालत देखी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, जिस पर उसने कहा, मुझे ज़रूरत है, बस मैं नहीं बता सकती। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और मैंने उस पर अमल करते उसे धमकी दी कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो इनकार करने लगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं इस लड़की के प्यार में इस कदर दीवाना हो गया था कि मुझे आसपास की कोई खबर नहीं थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझसे निकाह कर लो। वो बोली कि ठीक है, लेकिन पहली औलाद से पहले मेरी शक्ल ना देखना। मुझे बहुत हैरत हुई, मगर मैं मान गया। मैंने अपने घर शादी की खुद बात की तो मेरे अब्बा काफ़ी हैरान हुए, लेकिन जब मैंने अपनी पड़ोसन की बेटी के रिश्ते की बात की तो अम्मा अब्बा दोनों मुझसे नाराज़ हो गए। उनको लगा कि मैंने उनका नाम मट्टी में मिला दिया है, मगर मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए किसी की परवाह न की। अम्मा अब्बा ने काफ़ी ज़िदबाजी की कि वो मेरी शादी नहीं करेंगे वहाँ, लेकिन मैं भी अपनी ज़िद पर अटका रहा और एक ही बात कही कि मैं वहाँ ही शादी करूँगा। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और मेरा रिश्ता लिए पड़ोसन के घर चले गए। मेरा दिल बहुत बेचैन था, न जाने क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा। मैं कुछ नहीं जानता था, न इस लड़की का फ़ोन नंबर मेरे पास था। 2 घंटे का मुश्किल वक्त मैंने बहुत मुश्किल से निकाला। दिल में बस एक ही बात बार बार आती जा रही थी कि अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया तो। शाम के वक्त जब अम्मा और अब्बा घर आए तो मैंने जल्दी से उनसे पूछा कि क्या कहा है पड़ोसन ने। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा अब्बा ने बताया कि लड़की ने खुद इनकार कर दिया है। मैं आंखें फाड़े अम्मा अब्बा की बातें सुनने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लड़की ने तो खुद हाँ की थी। मैं थक हार कर अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर सोचने लगा,
आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। अगले कई रोज़ वो लड़की मुझे नजर न आई। फिर एक रात मुझे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। जब मैं छत पर चला गया और बाहर की तरफ देखने लगा, मेरी हैरत की इंतहा न रही जब पड़ोसन की बेटी आज फिर नकाब में कहीं जा रही थी। लेकिन अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था कि भीख मांगना इसके लिए ठीक है, मगर इज्जत से घर बैठने से मंजूर नहीं था। एक हफ्ता मस्जिद गुजरा तो मैंने उसका फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। अब वो रात के वक्त भीख मांगने जाती थी, शायद इसलिए कि दिन की रोशनी में कोई इसे पकड़ न ले। मैं फिर से इसके पास गया तो वो अनजान बनती आगे को चलने लगी, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोका और उससे पूछा कि आखिर उसके साथ मसला क्या है, क्यों वो ऐसे कर रही है, क्यों उसने शादी से इनकार किया। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब वो मेरे कंधे से सर टकाए फूट फूट कर रोती, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। मैं उसके रोने की वजह तो नहीं जानता था, मगर उसके आंसू मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने उसको तसल्ली दी कि वो मुझसे शादी कर ले, मैं उसका सारी ज़िंदगी साथ दूंगा। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों शादी करना चाहता हूँ उससे, लेकिन मेरे उसके क्यों का कोई मेरे पास जवाब नहीं था। मैं उसको कुछ नहीं बता सकता था, बस यही कहा कि तुम्हारा मेरे घर आना ही बेहतर है। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और फिर जब बोली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब उसने कहा कि अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारी बीवी पहले किसी और से प्यार करती थी, मैं झटके से 2 कदम पीछे हटा और उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगा। मैंने अपना सर झटक कर फिर से उससे कहा कि हाँ, मैं तुमसे फिर भी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर उसने मुझसे शादी की हामी भर ली। अम्मा अब्बा से कहा कि दोबारा से रिश्ता लेकर जाएं, जिस पर अब की बार अम्मा काफ़ी नाराज़ हुई, मगर वो रिश्ता ले गई और मुश्किल से ही सही मगर मेरा रिश्ता इधर हो गया। शादी धूमधाम से तो नहीं, लेकिन पूरे रस्म रिवाज से हुई थी। मैं बहुत खुश था इस शादी से। हमारे मोहल्ले में पहली शादी थी जिसमें दुल्हन नकाब में थी। मेरी तरह हर एक को तजस्सुस होने लगा था कि इस नकाब के पीछे चेहरा कैसा है। मेरे अम्मा अब्बा भी काफ़ी तजस्सुस में थे, क्योंकि अब तक उन्होंने भी मेरी बीवी का चेहरा नहीं देखा था। रुखसती होकर साथ वाले घर में ही आनी थी, लेकिन घर में कदम रखते मेरी बीवी ने मुझे अपना किया गया वादा याद करवाया था। मेरा खुशी से भरपूर चेहरा एकदम मुरझा गया, जो उसकी नज़रों से दूर नहीं था, मगर वो सर मारती घर में दाखिल हो गई। मैंने खुद को काबू में रखा, लेकिन जब बीवी को कमरे में भेजा गया तो शादी की रात बेकरार होकर उसके चेहरे से मास्क हटा दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए अपनी बीवी का चेहरा देखकर। मैं हैरानगी से 2 कदम पीछे हटा तो वो फूट फूट कर रोती और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा कर कहने लगी कि मैंने आपको कहा था कि पहले बच्चे से पहले आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे अब छोड़ देंगे। मेरा दिल एकदम मुट्ठी में आ गया, मगर हैरत इस बात की थी कि इसके चेहरे में ये हुआ कैसे। वो देखने में काफ़ी बदसूरत लग रही थी। मुझे कुछ पल के लिए उसके चेहरे को देखकर कराहत महसूस हुई। मेरा मतली वाला दिल होने लगा, क्योंकि इसके चेहरे पर छाले पड़े हुए थे जिनमें से पानी रस रहा था। वो बहुत अजीब लग रही थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लेकिन फिर जैसे मेरे अंदर पुराना हाशिम जाग उठा। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ कर मेरे अंदर अपने अब्बा की तरबियत को उजागर किया, वरना अपनी बीवी का चेहरा देखकर तो मैं एक बार उसे छोड़ने का फैसला कर चुका था। फिर मैंने दिल को बड़ा किया और ख़ुद को हौसला दिया कि वो अब मेरी बीवी है और मेरी मर्दानगी ये गवारा नहीं करती कि मैं उसे छोड़ दूँ। मैंने उसके आंसू साफ किए और उसे हौसला दिया, पानी पिलाया। जब वह नॉर्मल हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था उसके चेहरे पर, टांके क्यों लगे हुए हैं। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी बीवी कॉलेज में पढ़ने जाती थी, जहाँ एक लड़का उसके साथ ही पढ़ता था। लड़का बहुत खूबसूरत था और मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत थी। मेरी बीवी पहले तो इन सब बातों से दूर रहती थी, फिर किसको पसंद किए जाना अच्छा नहीं लगता। मेरी बीवी के क्लास फेलो ने मेरी बीवी से प्यार का इजहार किया तो वो पहले तो घबरा गई, मगर किसी को कुछ भी नहीं बताया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी को भी इस लड़के से प्यार हो गया। इस लड़के ने मेरी बीवी को बहुत ख्वाब दिखाए। एक रोज़ इस लड़के ने मेरी बीवी को रात के वक्त अपने घर पर बुलाया। मेरी बीवी ने घर जाने से इनकार कर दिया तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाने लगा। मेरी बीवी ने कह दिया कि अब वो मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर इतना उसे पसंद करता है तो उसके घर रिश्ता भेजे। लड़के ने बहाने बनाना शुरू कर दिए कि उसके घर वाले नहीं मान रहे, हम कहीं बाहर बैठकर आराम से बात करते हैं। मेरी बीवी भी मोहब्बत में थी, तभी उससे मुलाकात के लिए तैयार हो गई। जब मेरी बीवी उससे मिलने उसकी बताई जगह पर गई तो वहाँ जाकर देखा कि वो लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ और बहुत से लड़के थे। मेरी बीवी घबरा गई और जैसे ही वापसी के लिए मुड़ी तो उस लड़के के दोस्तों ने मेरी बीवी को पकड़ लिया और उससे बेहोश कर दिया। मेरी बीवी को जब होश आई तो वो एक कमरे में बंद थी। यहाँ तक सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी भी फूट फूट कर रो दी। आगे क्या हुआ था मुझे इस बात का तजस्सुस था। मैंने अपनी बीवी को फिर से बोलने का कहा तो मैं हैरान रह गया। मेरी बीवी को जिस वक्त होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में तन्हा थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि बहुत से लड़के उसकी तरफ आ रहे थे।
उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, मगर सब लड़के हंसने लगे। इनमें से एक लड़के ने मेरी बीवी को पकड़ने की कोशिश की तो मेरी बीवी ने इसके हाथ पर दांत गाड़ दिए, जिस पर इस लड़के ने चीखते हुए अपना हाथ झटका और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी जिस पर कील नुमा डिजाइन बना हुआ था वो इस कदर तेज था कि मेरी बीवी के मुंह पर लगते इसका मुंह चीर गया। मेरी बीवी वहां से ही तकलीफ से तड़पने लगी, मगर किसी ने इसको देखा तक नहीं। मेरी बीवी के चेहरे से खून की लहरें बहने लगी। सब लड़के डर कर भाग निकले और उनमें से वो लड़का भी शामिल था जो कभी मेरी बीवी से प्यार के दावे करता फिरता था। अब दूसरी नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था। मेरी बीवी 2 रोज तक वहां तड़पती रही और फिर न जाने कौन शख्स मसीहा बन के आया और मेरी बीवी को अस्पताल ले गया। जहां मेरी बीवी को रखा गया वो कोई खंडर था और वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन 2 दिन हफ्ता इतवार की छुट्टी होने की वजह से वहां कोई नहीं आया था। मेरी बीवी को जब होश आई तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। चेहरे पर बेतहाशा तकलीफ के बायस उसने पास खड़ी नर्स से पूछा कि मेरे चेहरे पर क्या हुआ है। जहाँ एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी तो नर्स ने मेरी बीवी को अजीब नज़रों से देखकर वहाँ से चली गई। डॉक्टर आई तो मेरी बीवी से फिर से वही सवाल किया, जिस पर नर्स ने ये जवाब दिया कि घर से भागते हुए तो तुमने कुछ नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तब तुम्हें क्यों इतनी फिक्र नहीं हुई जब तुमने अपने माँ बाप का सर झुकाया था। मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी। 1-2 रोज के बाद जब मेरी बीवी घर पहुंची तो वहाँ तो जैसे कोहराम मचा हुआ था। मेरी बीवी के अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। बेटी की गुमशुदगी की खबर जब पूरे मोहल्ले में फैल गई तो लोग थू थू करने लगे। थक हार कर मेरी बीवी को वो मोहल्ला छोड़ना पड़ा। पढ़ाई तो छूट ही गई थी, अब तो घर भी छोड़ना पड़ा। 10 दिन बाद जब मेरी बीवी ने चेहरे से पट्टी हटाई तो इतने खूबसूरत चेहरे पर 12 टांके लगे हुए थे। मेरी बीवी रोने लगी क्योंकि इसे अपना चेहरा बहुत पसंद था। मोहल्ला बदला तो अब घर बैठकर गुजारा नहीं हो सकता था। मेरी बीवी ने बहुत से ऑफिस में अपने इंटरव्यू दिया, मगर नाकाम रही। जो लोग इसे रखने पर तैयार थे वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। थकार कर जब मेरी बीवी को और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो अपने चेहरे का इलाज करवाने के लिए मेरी बीवी ने भीख मांगना शुरू कर दी, क्योंकि अब मेरी बीवी का चेहरा मज़ीद ख़राब होता जा रहा था, ज़ख्म बढ़ता जा रहा था। मुझे अपनी बीवी की बातें सुन के बहुत रोना आया। लोग मोहब्बत के नाम पर कैसे कैसे रवैया इख्तियार कर लेते हैं, कैसे कैसे लुटेरे मोहब्बत के नाम पर बैठे हुए थे। मेरी बीवी भी इन लुटेरों के हाथ चढ़ गई थी। मैं इसके कदमों में गिर गया क्योंकि मेरे दिल में भी उसके लिए उसका चेहरा देखते पहले नफरत ही आई थी। एक आम इंसान खूबसूरती की तरफ माइल होता है और मैं भी एक आम इंसान बन चुका था। मेरे अब्बा की इतने सालों की मेहनत पानी में जा मिली थी। मैंने अपनी बीवी से वादा किया कि मैं उसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा, जिस पर पहले तो वो मना करती रही, फिर उसने हामी भर ली। लेकिन उसने मुझसे वादा लिया कि आज के बाद मैं उसे किसी के भी सामने नकाब उतारने को नहीं बोलूँगा। मैंने भी हामी भर ली। मेरी अम्मा और अब्बा इस बात के काफ़ी खिलाफ हुए। मेरी अम्मा हर वक्त उसे बातें सुनाती रहती। घर का माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। जिस घर में कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक न की थी, अब इस घर में हर वक्त की तू तू मैं होती रहती थी। मैंने अहद कर लिया था कि अब अपनी बीवी को अलग घर लेकर दूंगा, जहां वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। हर वक्त की बातें उसे चिड़चिड़ा करती जा रही थीं। अपनी जिम्मेदारी बनाया था तो मुझे अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। मैंने अपने मोहल्ले से कुछ दूर एक नया घर खरीदा। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर हम दोनों के लिए काफ़ी था। मैंने अपने घर बात की तो मेरी अम्मा ऊंचा ऊंचा रोने लगी और मेरी बीवी से कहने लगी, तुमने मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया, तुम तो मनहूस हो, तुम्हारा चेहरा भी मनहूस ही होगा जो तुम सबसे छुपाती फिरती हो। न जाने क्या गुनाह किए हैं तूने जो तेरा चेहरा छुपाती फिरती है। मेरा दिल कट कर रह जाता अम्मा की बातें सुनकर, लेकिन मैं अपनी अम्मा के आगे एक लफ्ज़ नहीं बोल पाता था। मगर मैं अपनी बीवी को अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त करते नहीं देख सकता था। तभी मैंने उसे अलग घर लेकर दे दिया और इसमें अपनी बीवी को रखा। मेरे अब्बा मेरी जुदाई बर्दाश्त न कर पाए और हार्ट अटैक से बिस्तर मर्ग पर जा पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करूं, अपने अम्मा अब्बा का साथ दूं या अपनी बीवी का, जो बेकसूर होकर भी इतने अरसे से तकलीफ़ों के अंबार सह रही थी। मैंने अपनी अम्मा से वादा किया मैं जल्द लौट आऊँगा, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी अम्मा ने ये कहकर मुझे घर से बेदखल कर दिया कि हम तुम्हारे लिए मर गए हैं, अब तुम बस अपनी बीवी के साथ रहो। लेकिन ये वक्त बस मुझे अपनी बीवी की फ़िक्र थी, जिसका चेहरा दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। तभी मैं उसे लिए अमेरिका के बहुत अच्छे डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ मुझे तकरीबन 5 महीने का वक्त लगा। मेरी बीवी के चेहरे की 5 सर्जरियाँ होने के बाद इसके चेहरे का ज़ख्म ठीक हुआ था। अब मुझे नई फ़िक्र लाहक हो गई थी कि इसके चेहरे पर बने दाग कैसे ख़त्म होंगे। मैंने एक डॉक्टर से बात की तो उसने मुझे बहुत सी दवाइयाँ लिख कर दी, मगर मेरी बीवी के चेहरे पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। थक हार कर जब हम वापस पाकिस्तान आए तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जब मुझे घर कदम रखते ही पता चला कि
کہ میری ناراض ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئی ہے۔ میرے ابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میرا ہنستا بھنستا گھر اجڑ چکا تھا۔ خالی گھر مجھے اپنے کیے گئے گناہوں کی یاد دلاتا تھا، جو میں اپنے اماں ابا کو اکیلا یہاں چھوڑ گیا اس بڑھاپے میں، جب ان کو سب سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، اپنی بیوی کا علاج نہ کروا پاتا اگر میں یہاں سے نہ جاتا اور وہ گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ مجھے اس بات کا پچھتاوا تھا کہ میں اپنے اماں ابا کو تنہا کیوں چھوڑ کر گیا، مگر اب مجھے اپنی بیوی کے چہرے سے وہ داغ ہٹوانا تھا۔ میں اس لڑکے کو سزا تو نہیں دلوا سکا، مگر میں اپنی بیوی کا چہرہ ٹھیک کروا کے اسے دنیا میں سر اٹھا کر جینا سکھا سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے ایک بابا جی کا بتایا۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر میں اپنی بیوی کی خاطر اس بابا جی کے پاس گیا، جس نے میری بیوی کے چہرے پر لگانے کے لیے ایک لیپ دیا۔ وہ روز رات لیپ لگا کر سوتی تو صبح اس کا چہرہ چمکنے لگتا تھا۔ ایک روز میں صبح اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیوی کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے آج اپنی تربیت پر خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے جاہل لوگوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اچھے شوہروں کی طرح اپنے ابا کی تربیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی بدصورت بیوی کا ساتھ دیا، اور میری محبت سے وہ اس قدر خوبصورت ہو گئی کہ اس پر ایک نظر پڑتے ہی نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس نے بھی اچھی بیویوں کی طرح میرا بہت ساتھ دیا تھا، میرے ہر غم میں میری شریک رہی اور ہر خوشی کی ساتھی بنی رہی۔ میں اب ہر روز اماں ابا کی قبر پر جاتا تھا، اور جب جب میں غم سے نڈھال ہونے لگتا تو وہ مجھے تھام لیتی، اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔ میں جو اپنے اماں ابا کو تنہا چھوڑ جانے کی وجہ سے شرمندہ تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے ہر پل تسلی دی۔ اپنی بیوی کی زندگی آسان کر کے مجھے بھی احساس ندامت کم ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کی پرورش بھی اپنے ابا کی طرح ہی کروں گا، جس طرح میرے ابا نے میری تربیت کی تھی۔ عورت کا احترام میری رگ رگ میں بسا دیا تھا۔ میں جو اپنی راہ سے بھٹک گیا تھا، اب جیسے سب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں وقت پر نماز پڑھتا، قرآن پڑھ کر اپنے اماں ابا کو بخشتا تو جیسے ضمیر سے کوئی بوجھ اترنے لگا تھا۔ میں نے خود کو معاف کر دیا تھا تاکہ میں اپنے آگے کی زندگی سکون سے گزار سکوں، لیکن نماز کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر کبھی میں اپنی راہ سے بھٹکا نہیں تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔